Okay, kids. So continuing with our chapter, we came to question number example number 2. Okay, we have discussed till example number 1 in the last lecture. Now we will be starting with our example number 2. Write minus 7 by 5 with first numerator is 49. We need to make numerator 49. For making numerator 49, you need to multiply minus 7 by 5 with minus 7 on both the places. Okay, why minus 7? Because we need plus 49. Okay, so you can see here 49, sorry, 7 by 5. So 7 by 5 multiplied by minus 7 upon minus 7, you got 49 upon minus 35. Coming to the second part, denominator as minus 40. सिमिलरली 5 की टेबल में माइनस 40 कब आता है? माइनस 8 जा, तो माइनस 7 अपॉन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8 अपॉन माइनस 8, तो यू गॉट 56 अपॉन माइनस 40. अंडरस्टूड? नाउ राइट 9 by minus 13 with positive denominator. For making positive denominator, you need to multiply numerator and denominator by minus 1. Okay, so we multiplied by minus 1, so you got minus 9 upon 13 where you got positive denominator. Okay, now example number 4. Are the rational number this and this equal? Okay, we did that. They either multiply numerator denominator or check out. Okay, so here we will be making them in standard form. ठीक है, 8 by minus 12 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पे बनाए तो क्या बना? माइनस 2/3. 16 by minus 24 को स्टैंडर्ड फॉर्म किया तो क्या बना? माइनस 2/3. बोथ ऑफ द आंसर इज सेम, मतलब दीज टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट फाइंड वेदर दिस एंड दिस आर इक्वल. सेम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. You will see that the answers are not equal. Here you have got minus and here you have got 2 by 7. These two are not equal. That is why this rational number is not equal. Now coming to the next question, that is show that minus 15 by 40 and 24 by 64 are equal. Same. अब इसमें इन्होंने क्या मेथड यूज़ किया है? Numerator of first rational number multiply denominator of second rational number, numerator of second multiply by denominator of first. Okay, you will check that both of their answer is coming minus 960. Okay, that is why these two are equal. This is our second method. First method was convert in standard form. याद है हमने last lecture में पढ़ा था. First method was convert in standard form. Second method is multiply numerator denominator of both rational numbers. Okay, and third was LCM. Okay, so here we'll see one more example related to same. Minus 8 by minus 14 and 13 by 21 are equal or not? ठीक है, step 1 multiply the numerator and denominator of first rational number with denominator of second rational number. ठीक है, हमने फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये LCM मेथड है बच्चों. स्टेप 2 में हमने फर्स्ट के डिनोमिनेटर को से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ यू विल सी दैट आंसर आर नॉट कमिंग सेम, मीन्स दिस टू आर नॉट इक्वल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द रैशनल नंबर दिस इक्वल और नॉट? एलसीएम फाइंड करो, मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे तीनों आंसर्स आपके इक्वल आ रहे हैं. सो मतलब दीज आर इक्वल रैशनल नंबर्स. नाउ कमिंग टू आवर एक्सरसाइज 1.1, we will discuss it now. You have to solve by yourself. Draw the number line, represent the following numbers on it. ठीक है, ये नंबर लाइन आपको बनानी है और उस पर ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं. ठीक है किड्स, यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ. वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट जूम क्लास. सेकेंड क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर, कन्वर्ट देम, टेक LCM, convert them all with same denominator and then make them in ascending order. सेम विद डिसेंडिंग ऑर्डर. LCM लो, सॉल्व करो, फिर देखो कौन सा बड़ा है. ऐसे सम हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैं अभी सॉल्व नहीं करवा रही हूँ. नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हुआ.
नेगेटिव 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 हुआ, और यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज पॉजिटिव. ओके, express this as rational number with numerator this. Okay, so first exercise you have to solve by yourself. I'll help you with question number 7. 15 by x equals to minus 3. So here what we will be doing is we will be taking minus 3 over here and we'll be taking x over here. तो क्या हो जाएगा 15 by minus 3 equals to x. So that implies minus 5 is your answer. ओके, इसमें क्या करोगे आप, सिंपल -25 को इधर ले जाओगे, तो ये क्या बनेगा 3 इंटू -25 अपॉन 5 इक्वल्स टू x. ओके, ऐसे करके आपको ये सॉल्व करना है. वी विल डिस्कस इन आवर क्लास. एंड राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज़ वेरी इजी. ओके, सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज. We will be discussing this exercise in our next class. Now, operation on rational numbers. Operation on rational numbers are case 1 when the denominators are same. Operations are very easy. अगर denominator same है तो आप प्लस माइनस कुछ भी easily कर सकते हो. Okay, but if denominators are different, then you need to take LCM first of the denominators and then add or subtract them. Okay, we have two cases while adding and subtracting. First case, when the denominators are same. If the denominators are same, we will simply add or subtract the numerators. But when the denominators are different, you need to take the LCM of the denominators and then you need to solve. Same for subtraction also. For multiplication, there is no case. Simple, you need to multiply the numerators upon product of denominators. सिमिलरली फॉर डिवीजन, डिवीजन में एक चीज़ क्या होती है, देखो डिवीजन में दिस थिंग हैपन्स. अगर दो रैशनल नंबर डिवीजन में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बीच का साइन मल्टीप्लाई करके इसके बाद वाला जो नंबर है ना उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसा हम फ्रैक्शंस में करते हैं. जैसे p बाई क्यू डिवाइड बाय r बाय एस है, तो ये क्या हो जाएगा p बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय s बाय r, रेसिप्रोकल हो जाएगा. और फिर सेम जो हम मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, p इंटू एस अपॉन क्यू इंटू आर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर. ओके, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट when two rational numbers are added their sum is always a rational number. अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे तो उनका सम हमेशा रैशनल नंबर होगा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में भी होता है, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट टू रैशनल नंबर उनका सम हमेशा डिफरेंस हमेशा रैशनल नंबर होगा. सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन के व्हेन यू विल मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स their product will always be rational number. And in division there is one exception, that a divided by 0, any rational number divided by 0 is not possible. Rest all rational numbers are closed under division. कोई भी rational number divided by 0 करोगे that is not defined. Division by 0 is not defined. Rest all rational numbers are possible. Now commutative property. Commutative property says that add rational number 1 with 2 और 2 with 1, योर आंसर विल ऑलवेज बी सेम. a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा. बट इन सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक में से दूसरा माइनस करो, दूसरे में से पहला माइनस करो, आंसर डिफरेंट आएगा. जैसे कि देखो आपको एग्जांपल दिया है, 5/6 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/6 आया, 2/3 माइनस 5/6 इक्वल्स टू माइनस 1/6 आया. तो यहाँ माइनस का भी डिफरेंस आता है ना बच्चा, तो आंसर डिफरेंट होता है. मल्टीप्लिकेशन में भी सेम आएगा. अगर आप दो रैशनल नंबर को फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सेम आएगा. और डिवीजन में भी पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, आंसर हमेशा डिफरेंट आएगा. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी नहीं होती. ओके. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रैशनल नंबर आ जाएंगे. ओके. पहले 2 का प्लस करके तीसरे से
आंसर को तीसरे से प्लस करो, या फिर लास्ट के दो को ऐड करके पहले से प्लस करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। सेम सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल होती है और डिवीजन में पॉसिबल नहीं होती। बच्चा मोस्टली जब भी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे ना, तो दीज प्रॉपर्टीज़ आर नॉट पॉसिबल अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एक्सेप्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड रेस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज। क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है, ऐसे करो कि वैसे करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। कमिंग टू डिवीजन, डिवीजन ऑल्सो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल। पहले दो को डिवाइड करके तीसरे से डिवाइड करो, या फिर लास्ट दो को डिवाइड करके पहले से डिवाइड करो, पॉसिबल नहीं है, आंसर सेम। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि देखो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 3/5। तो ये 2/5 जो है ना, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो 2/5 इंटू 2/3 प्लस 2/5 इंटू 3/5। ओके, ये जो 2/5 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब LHS आप सॉल्व करो, मतलब दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करो, आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये था डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी। ओके, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एक नंबर ऐसा जिससे हम कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो हमारा नंबर इटसेल्फ आएगा, दैट इज ज़ीरो। आप ज़ीरो को कोई भी नंबर से प्लस करो, आपका आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। तो ज़ीरो इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी, या आप बोल सकते हो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। ओके, ज़ीरो इज़ योर एडिटिव आइडेंटिटी, या आप क्या बोल सकते हो उसको, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि दोनों नंबर को प्लस करो तो आंसर आपका आना चाहिए ज़ीरो, मतलब कि एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा। सेम रैशनल नंबर्स में होता है P/Q, अगर रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस P/Q। ओके, अगर माइनस P/Q आपका नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस P/Q। अंडरस्टूड। नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम, कि कब आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, तब जब आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर नंबर इटसेल्फ आता है, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बोलता है कि दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो मतलब एक रैशनल नंबर होगा और दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। मतलब एक P/Q होगा तो दूसरा क्या होगा, Q/P। इसमें बेटा साइन का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, आंसर हमेशा 1 ही आना चाहिए, -1 भी कभी नहीं आना चाहिए। ओके, सो अगर एक रैशनल नंबर है P/Q तो दूसरा क्या होगा, हमेशा Q/P। मतलब अगर आपका एक रैशनल नंबर है 2/7 तो दूसरा क्या होगा, 7/2। ओके, तो मतलब 2/7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 7/2, 7/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 2/7। ओके, नाउ सीइंग द एग्जांपल्स। Subtract -3/5 from -5/6. Here see your denominators are different, so first we will be finding difference, first we will be finding LCM, multiplying them and finding the difference. अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो हमको LCM फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो। Now what should be added to -7/16 to get 13/20? So here what we will be do, we will be taking the number as x, तो -16 7/16 प्लस x इक्वल्स टू 13/20। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 13/20 माइनस 7/16। सो दिस बिकम्स 13/20 प्लस 7/16। तो उसका फिर आप LCM फाइंड करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। मतलब आपको इन दोनों का सम फाइंड करना है, इन दोनों का आपको सम फाइंड करना है, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है। देखो सम फाइंड किया तो क्या आया, -7/45। प्रोडक्ट फाइंड किया तो क्या आया, -5/22। तो 7/45 डिवाइड बाय 5/22 क्या हुआ, 7/45 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा 22/5,
और हमने उसको कट तो वो हो नहीं सकता, तो हमने डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ना एडिटिव इनवर्स, जैसा मैंने बताया था 5/9 है तो क्या हो जाएगा -5/9, -3/7 है तो क्या हो जाएगा +3/7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, 2/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3/2। -19/17 है तो क्या होगा 17/-19। 5 है तो क्या होगा 1/5। 7/8 इंटू 2/5 है तो 7 2 14, 8 5 40, मतलब 14/40 है तो उसका क्या हो जाएगा 40/14, या फिर आप उसको यहाँ पे इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया। Simran bought a pen set for rupees this, book for rupees this, and umbrella for rupees this from departmental store. How much money did she spend in all? Spend in all मतलब कि आपको एडिशन करना है। ओके, सो पहले इन सबको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम क्या लेंगे उसका एलसीएम। एलसीएम लेके हम उसको ऐड कर देंगे और फिर वापस हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। एंड सी किड्स, यूनिट्स लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिट्स लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स नहीं लगाते तो उसके बहुत मार्क्स कट होते। नाउ सिंप्लीफाई 3/2 -4/5 प्लस -11/15 प्लस -13/10। ओके, पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं 3/2 -4/5 प्लस -11/15 प्लस -13/10। नाउ हमारा स्टेप क्या होगा, एलसीएम लेना। एलसीएम क्या आएगा 30, उसके अकॉर्डिंग हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर जो प्लस माइनस वाला ऑपरेशन है वो सॉल्व करके हमारा आंसर आया -4/3, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. So till here we have studied. Now in the next lecture we'll be doing our next exercise, that is exercise 1.2.